Hi guys, this is Keshav Malpani. Welcome back to 12 Minutes to CLAT, and I'm going to be telling you an entire strategy to prepare for the NLSAT exam 2025. So this exam is typically going to happen in mid of March, and preparation of about 6 to 7 months is good enough to prepare really properly for this exam. And you need to start now if you want to really become a part of this particular cohort of NLS Bangalore 3-year law. So NLS Bangalore, I think without any introduction, is the best law school in the country in terms of the resources, in terms of the alumni structure it has. And 2-3 years ago, it has started this 3-year law exam, which is getting a lot of traction. A lot of people are quite interested. The exam pattern is quite easy. I will explain that in this particular video. But you also have to understand the number of seats for All India students are also quite on the less side. So even though the exam is on the easier side, you have to be very accurate in the exam. आपको बहुत ज्यादा एक्यूरेट होना पड़ेगा. अगर आप एक्यूरेसी से थोड़ा भी इधर उधर होते हो, then it would create problem because आपकी एक अच्छी प्रिपरेशन ही वो आपको वहां तक पहुंचा सकती है. एंड यू नीड टू प्रिपेयर फॉर इट वेरी वेरी प्रॉपर्ली. एंड टू एड यू, टू मेक इट वेरी सिंपल फॉर यू, you can always go to the description of this particular video where you'll find link to this particular batch called Prahar for NLSAT 2025. These are going to be the top educators who will be teaching you your respective subjects. और क्या क्या subjects होने वाले हैं, उसमें क्या क्या concepts आते हैं, वो मैं आपको एक basic introduction आज दे दूंगा. You can visit 12minutes2clat.com, which is our website if you use a laptop or you could say a system. Or if you use phone while doing these things, you can always go to your Play Store or App Store and download the 12 Minutes to CLAT app and start working with us. It is going to be extremely fruitful. Anything, any doubt that you have about the batch, you can always contact us on these numbers. We'll be very happy to guide you with respect to anything you want with respect to this batch. Right? So यहाँ पे the exam is of 2.5 hours, 150 minutes and 150 marks as well. So the exam pattern is such that it's divided into two parts. Part A and Part B. Part A has all objective type questions with 3 sections in it. I will explain those sections. So it has 75 marks into it. And Part B is a descriptive type. So you don't have to mark A, B, C, D में से options. You have to write certain things, right? So that becomes quite interesting, and that is something you will need some practice. So ये 75 marks का ये भी होता है. So Part A is objective type. Part B is some descriptive type, which we have to prepare really properly. The objective part I would say is comparatively easier. ये एक ऐसी चीज है जो हमको आने में थोड़ा सा समय लगता है, जिसके लिए आपको प्रहार बैच में प्रॉपर्ली गाइड भी किया जाएगा हमारे एंड से. यहाँ पे लेट्स टॉक अबाउट पार्ट ए फर्स्ट. पार्ट ए फर्स्ट सेक्शन इज इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन. 25 क्वेश्चंस, 25 मार्क्स, ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क. अब यहाँ पर क्या क्या चीजें आती है? सो ग्रामर इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट. वोकैबुलरी, मतलब आपको ऐसा हो सकता है कि कॉम्प्रिहेंशन में से दे आस्क यू कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड, व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ दिस वर्ड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस फ्रेज. These kinds of questions can be asked. So questions from synonyms, antonyms, है ना, phrases, idioms, proverbs, comprehension passages आएंगे, है ना. 25 मार्क्स का है तो हो सकता है कि 5-5 मार्क के 3 या 4 पैसेजेस प्रॉपर्ली आए. तो दे आर गोइंग टू बी वेरी क्रूशियल फॉर यू. तो इसमें सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें टाइम भी मैनेज करना है, बिकॉज आइडियली यू हैव 1 क्वेश्चन पर मिनट, बट जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है उसमें थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगता है, राइट. वी टेक मोर टाइम, वी थिंक अबाउट इट. सो द फर्स्ट पार्ट, द पार्ट ए, has to be ideally done within 60 to 70 minutes, so we need to be quicker about it as well. Now what will help us is this particular section, which is current affairs. It has 25 questions, 25 marks. It will take barely 5 minutes to do, because current affairs is again very objective. You don't have to think कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ, am I right or wrong. आता है तो आता है, नहीं तो नहीं आता है. It's as simple as that, right? So यहाँ पे current affairs of national international importance, history, political science, economics, environment, legal sphere के कुछ topics, ये सारा चीजें मैं पर्सनली हैंडल करूंगा. तो दिस इज बेसिकली अ मिक्स ऑफ करंट अफेयर्स एज वेल एज स्टैटिक जीके. सो आई विल बी टेकिंग दिस रियली प्रॉपर्ली, बिकॉज यहाँ पर आपको सब कुछ नहीं करना है. बिकॉज जैसे अभी मैं 5 मिनट से बात कर रहा हूँ, ठीक है, 4-5 मिनट से बात कर रहा हूँ, और इस टाइम में भी कई सारे करंट अफेयर्स हो चुके होंगे. सो अगर हम सब कुछ करने लग गए तो बाकी सेक्शंस नहीं होंगे और हमें बाकी चीजें भी करनी होती है. सो इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू डू एवरीथिंग. तो आई विल बी गाइडिंग यू एज टू व्हाट आर सर्टेन एग्जाम वर्दी टॉपिक्स टू कवर. ठीक है, तो उससे आपको एक बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग मिलेगा कि ओके, दिस इज समथिंग वी हैव टू डू, दिस इज समथिंग वी हैव टू लीव, दिस इज नॉट रेलेवेंट, है ना. तो वो एक बहुत अच्छा गाइडेंस मिलेगा, एंड दैट इज व्हाई दिस बैच विल सर्टेनली हेल्प यू. क्रिटिकल रीजनिंग इज द थर्ड सेक्शन. इट इज अ मिक्स ऑफ एनालिटिकल एंड क्रिटिकल. तो यहाँ पे लॉजिकल पजल्स, बेसिक न्यूमेरिकल रीजनिंग, लीगल मैग्जिम्स वगैरह इसमें आ सकते हैं. थोड़ा इसमें लीगल भी ऐड हो जाता है हल्का सा, ठीक है, लैंडमार्क केस लॉज वगैरह. तो कई हर साल बहुत बड़े बड़े केस लॉज आते हैं. सो वी विल बी प्रोवाइडिंग यू विद प्रॉपर केस लॉज कंपेंडियम्स. ठीक है, हर साल कई सारे केसेस होते हैं, तो हम आपको मंथली केस कंपेंडियम प्रोवाइड करेंगे. इनफैक्ट इन करंट अफेयर्स आल्सो विल बी प्रोवाइड यू मंथली करंट अफेयर्स कंपेंडियम्स. तो आपकी सेल्फ स्टडी के लिए भी काफी सारा मटेरियल आपको बहुत इजीली
मिल जाएगा, so that you can prepare for yourself as well. So this is part 1, 3 sections each of 25 marks and 25 questions. Now let's come on to part B, which is a descriptive part. तो पार्ट बी का फर्स्ट होता है लीगल एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग. इसमें आइडियली 6 क्वेश्चन आएंगे, ईच क्वेश्चन विल कैरी 10 मार्क्स. अब इसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं, दे गिव यू सम काइंड ऑफ अ लीगल सिनेरियो. द क्वेश्चन इज कि सर हमें तो बहुत लॉ लिखना पड़ेगा, हमें लॉ नहीं आता है अभी. तो दे डोंट एक्सपेक्ट एग्जाम के जो उसका इस पर्टिकुलर सेक्शन की जो हेडिंग है उसमें लिखा होता है कि वी डोंट एक्सपेक्ट यू टू नो द लॉ, बट येट यू शुड नो द बेसिक लॉ. तो वो आपको क्लास में प्रॉपरली करवाया जाएगा ताकि एक अच्छा आंसर लिख सको. सो दे विल गिव यू सम काइंड ऑफ अ फैक्ट सिनेरियो. ठीक है, मतलब कुछ भी दे देंगे. जैसे मान लो अभी कुछ एक बड़ा लीगल केस चला है, लेट्स से व्हाट हैपेंड इन कोलकाता, द आरजी कर हॉस्पिटल जो केस है, तो वो आपको उस केस का कुछ फैक्ट सिनेरियो दे देंगे एंड देन दे विल आस्क यू कि फ्रेम अ लीगल ओपिनियन ऑन दिस. तो उसमें बड़ा मजा आता है, बिकॉज अगर आपको एक बेसिक क्रिमिनल लॉ का आइडिया है तो यू कैन फ्रेम अ वेरी गुड ओपिनियन और अच्छी बैलेंस्ड ओपिनियन बनाओ, है ना. क्यों हम ऐसी ओपिनियन बताएं कि भाई जो पॉपुलर ओपिनियन है उस पर तो ओपिनियन हम बनाएंगे, बट वी कैन ऑल्सो गिव देम सर्टेन पॉइंट्स अपना दिमाग यूज करके वेयर वी कैन यू मेक एन ओपिनियन फ्रॉम द साइड ऑफ द अक्यूज्ड आल्सो. ठीक है, आई एम नॉट ट्राइंग टू बी इनसेंसिटिव हियर, आई एम जस्ट सेइंग कि दैट इज हाउ लॉ वर्क्स. ठीक है, दैट इज हाउ वी डू थिंग्स. और इसी से हम बहुत ज्यादा समझते हैं चीजों को कि जो साइड डिफिकल्ट है, हाउ डू वी मेक एन आर्ग्यूमेंट फॉर दैट साइड, बिकॉज दैट इज अल्टीमेटली व्हाट अ लॉयर डज. तो इसीलिए इसमें 10 क्वेश्चंस के आसपास आएंगे. योर ओपिनियन कैन नॉट एक्सीड 350 वर्ड्स. 350 वर्ड्स द मैक्सिमम लिमिट टू विच यू कैन डू. तो ये आपको प्रॉपर करना है. इसमें प्रोपोजिशंस आएगी, मैक्सिम्स आएंगे, केस लॉज, कॉन्स्टिट्यूशन की नॉलेज होनी चाहिए, विच विल बी प्रॉपरली A to Z taught to you in class. A to Z चीजें उसमें आपको क्लास में करवाई जाएंगी, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट. पार्ट बी ऑफ इट कैरीज अनदर 15 मार्क्स. इसमें सिर्फ एक एनालिटिकल एबिलिटी पे क्वेश्चन आएगा. अब वो कुछ भी हो सकता है. तो जो एनएलसैट में एनएलएसआईयू ने जो सैंपल पेपर रिलीज किया था, तो उन्होंने क्वेश्चन दिया था ऑन क्लाइमेट चेंज. तो क्लाइमेट चेंज पे हर साल बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, तो इसके लिए करंट अफेयर्स की नॉलेज बहुत काम आती है. ठीक है, दे गिव समथिंग ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. सो मच इज गोइंग ऑन, सो मेनी जीपीटीज आर कमिंग, सो मेनी डिफरेंट थिंग्स आर हैपनिंग. तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज जेन्युइनली द नेक्स्ट बिग थिंग. वी जेन्युइनली नीड वेरी गुड लॉज टू कवर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एज वेल. तो उसका देयर इज अ प्लस साइड टू इट, बट देयर इज ऑब्वियसली अ नेगेटिव साइड टू इट एज वेल. तो उस तरीके की चीजें आएंगी. 500 वर्ड का बड़ा पैसेज होता है इसमें, तो यू विल हैव टू राइट दिस बिगर पैसेज, जिसकी आपको प्रॉपरली अच्छे से तैयारी की जाएगी. बिकॉज 500 वर्ड कोई भी लिख सकता है ना, कोई भी अब उस लेवल पर नहीं है कि हम लिख नहीं पाएंगे किसी भी चीज में, लेकिन एक स्ट्रक्चर होता है हर चीज का. देयर हैज टू बी अ प्रॉपर इंट्रोडक्शन, देयर हैज टू बी अ प्रॉपर बॉडी. उस बॉडी में भी ऐसा नहीं कि मैं रैंडमली कुछ भी लिख दूंगा, उसका भी एक सीक्वेंस होता है लिखने का. देयर हैज टू बी अ प्रॉपर कंक्लूजन. इट हैज टू लुक लाइक अ स्टोरी. देयर शुड बी डॉट्स कनेक्टेड. ऐसा नहीं कि एकदम ही हमने डिस्टॉर्टेड कुछ भी लिख दिया है. तो उसको प्रॉपरली समझाने की जिम्मेदारी हमारी होगी आप लोगों को. तो यहाँ पर मेजरली कह सकते हो कि रीसेंट करंट अफेयर्स और लीगल करंट अफेयर्स को जो चीजें होती है वो हमें पता होनी चाहिए फॉर डूइंग दिस पर्टिकुलर सेशन रियली प्रॉपरली. सो आई विल बी टेकिंग केयर ऑफ ऑल योर लीगल करंट अफेयर्स एज वेल एज करंट अफेयर्स एज वेल एज स्टैटिक जीके, एंड वी हैव एक्सपर्ट एजुकेटर्स हु आर गोइंग टू बी पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर बैच, जो कि आपको पूरा ये यहाँ पर समझाएंगे. एंड नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि इसके सोर्सेस क्या क्या हो सकते हैं. एक तो हो गई क्लासेस, लेकिन क्लासेस के अलावा भी आप किस तरह से सेल्फ स्टडी करोगे. सो इंग्लिश के लिए यू कैन परचेज बुक्स सच एज रेवन मार्टिन और RS अग्रवाल. कोई भी एक किताब ले सकते हो. दीज आर गुड बेसिक बुक्स. करंट अफेयर्स के लिए कोई बुक नहीं आती, बिकॉज करंट अफेयर की आज किताब ले लोगे तो फिर कल के करंट अफेयर कैसे करोगे. सो ओनली रेफर टू ऑनलाइन सोर्सेज. So classes are going to be helpful. We'll also give you a current affair monthly compendium that will be very helpful. एक वेबसाइट आप रेफर कर सकते हो which is GK Today. Normally search on Google, you'll find this website. You can do the MCQs of this website. रोज ये लोग 5 MCQs रिलीज करते हैं, 5 मिनट लगेंगे रोज, है ना. Critical reasoning के लिए you can buy this book called MK Pandey on Logical Reasoning. It's a very good book. You can also practice a lot from this book other than the questions that we give you. And legal reasoning में you will get classes, previous year questions and all. तो वो important होगा, लेकिन कोई भी किताब मत लेना. लीगल रीजनिंग के लिए एनएलसैट में कोई भी किताब नहीं होती. अगर आपको कोई एपी भारद्वाज वगैरह सजेस्ट कर रहा है, इट इज नॉट हेल्पफुल. वो पुराने क्लैट पैटर्न की है, ठीक है. तो दे आर नॉट हेल्पफुल फॉर लीगल रीजनिंग पर से. द बेस्ट वे टू गो अबाउट इट इज अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स. वो आप क्लासेस में कर लोगे एंड ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चंस, ट्राई टू फ्रेम योर आंसर्स. वो प्रॉपर्ली जो हमें आंसर फ्रेमिंग करनी है आपको वही करना पड़ेगा इसमें, राइट. यू डोंट हैव टू वरी टू मच अबाउट हाउ टू गो अबाउट दीज काइंड्स ऑफ थिंग्स, राइट. तो ये आपको एक प्रॉपर सिस्टम बना के देगा. यू विल ऑल्सो गेट अ लॉट ऑफ मॉक टेस्ट. हर वीकली हम आपको मॉक टेस्ट देते रहेंगे ताकि आप ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट भी सॉल्व करो एंड यू अंडरस्टैंड वेयर यू स्टैंड, राइट. सो द कट ऑफ फॉर दिस एग्जाम यू कुड से इज स्लाइटली ऑन अ हायर साइड इफ एन ऑल इंडिया कैंडिडेट, एंड ऑल इंडिया जनरल कैंडिडेट के लिए ज्यादा होती है इसकी कट ऑफ. तो इसीलिए हमको धीरे धीरे करके इंप्रूव करना पड़ेगा कि हम 150 में से कितना अच्छा स्कोर कर सकते हैं. जितना ज्यादा करोगे उतने ज्यादा चांसेस हैं. और ये मत टेंशन लेना कि बहुत कम सीटें हैं, हम कैसे जाएंगे. इट इज ह्यूमन बीइंग्स हु मेक इट एवरी ईयर, right. So you can become a part of this batch. Go to the website, download our application as well from Play Store or App Store.
and start with us right away. We'll be very very happy to guide you. इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है. अगर आपको कोई भी और डाउट होता है तो मैंने जो आपको नंबर्स दिए थे at the starting of the session, you can always contact on those numbers. They will guide you with respect to anything or any discounts that additionally can be given from our side. All the best guys. I hope to see you in class.